Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CE Sansar. I'm speaking Stella from the CE Sansar. Today we are going to talk about very interesting topic and also the important. The topic is the big changes in TDS law under income tax 2025. For that we having the CA Vivek Khurana sir. First of all, thank you so much sir to giving your valuable time and also your attention. So that sir, I have the smallest request to guide us the what is a new TDS law under changes so that we can learn also. Now, before I begin, I will request to all of you those who are watching us to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share and comment. Now, sir, I would like to invite you to share your thoughts on the topic. Thank you very much, Stella, and the whole team CS Sansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another important topic. I know it's the time for the bank branch audit, and in our last video, I promised you that we will bring more and more videos on the bank branch audit. Yes, definitely we will do, but this topic is also very important because this new Income Tax Act 2025, which are going to applicable from 1st April 2026. So you have to check what's the TDS rate, whether any changes are there, because many confusion are there. Even many people ask for the some threshold limit because this income tax act 2025 is there, and now new budget is also there, and then lots of confusion are there because that's not enacted yet. So people are saying no, this has been changed, this has been changed. So let's see. I will show you through the PPT. I will try my best, but one disclaimer is there. All these are my personal views, and not the views of the CS Sansar or any other person or any other authority, and not this video is not for the purpose of any solicitation and any other manner of the advertisement. It's the only purpose is to give the knowledge to the members, to update their knowledge. So let me show you through the PPT. One moment. Yes. Uh, Now, yes, it's a visible PPT. Yeah. So big changes in TDS law. As you ask, what's the changes in the TDS law in this new Income Tax Act 2025? So I just want to say it's just like old wine in the new bottle. So I don't know why they are coming with the new Income Tax Act. Almost everything is same, but वो कहीं ना कहीं उसको sections change कर दिए. Earlier it was there because there are lots of section was there. So that we will discuss. So earlier, what we people were using, 192, we know that because from last Income Tax Act 1961 was there, and from last many years up to means you can say that fingers पे याद है सारे section 192, 193, 194A, 194C, B, H, I, J, K, Q, every section. So these are some old section. So now remember this thing, very very important. Earlier, we have recorded a video where we have mentioned regarding the draft income tax rules. At that time, I told you PAN forms has been changed, then form 16a has been changed, then TDS return forms has been, जो आपकी return जाते हैं 24Q, 26Q, that has been changed. Now, this Income Tax Act 2025, the TDS section has been changed. And yes, very important. I will try my best. I will also record a video. So I will also ask the CS and SAT team to give me more time. So now onwards, we'll try to upload on daily basis regarding the ओल्ड इनकम टैक्स सेक्शन वर्सेस द न्यू इनकम टैक्स सेक्शन कि पहले क्या सेक्शन था और अब उसका साइमल्टेनियसली क्या सेक्शन आया. So we'll try my best. So remember, these are Income Tax Act 1961, where 192, because there was lots of sections were there. Every year in new budget, दो तीन TDS के section add कर देती थी गवर्नमेंट 194 Q etc etc. So now what they did, अब उन्होंने सिर्फ two sections, only two section, and one more is for TCS. One is 392, section 392, which are basically for the TDS on salary. And another one, section 393, which is
TDS on other payments, and section 394 which are TCS provisions. वो अलग बात है कि अब इन सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस है, उसके बाद उसके अंदर सीरियल नंबर्स है, टेबल सीरियल नंबर, एंड देन उसके बाद क्लोज है। तो पहले तो हमें याद हो गए थे 192, 194, 194 ए, 194 सी, एच, आई, जे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाउ वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस सेक्शन, और फिर रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, थ्रेशोल्ड में हो सकता है कुछ चेंजेस हो। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो जो ये न्यू सिस्टम है अंडर 393 जो मैंने आपको बताया, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। 192, 392 ऑलमोस्ट सेम है, बट जो 393 है उसके अंदर सबसेक्शन एंड देन सीरियल नंबर एंड देन क्लोज, दैट्स डिफरेंट। तो उसमें क्या इन्होंने ऐड करा है, जो सेक्शन 393 फॉर एग्जांपल, जो आपका 393 सबसेक्शन 1 सीरियल नंबर 6 क्लोज जो आई है, उसमें इन्होंने सेक्शन नंबर पहले, उसके बाद सबसेक्शन, देन सीरियल नंबर, देन उसको आपका जो क्लोज या सब कैटेगरी आपको दे हैव मेंशन एक न्यू, टोटली न्यू। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमें वी जस्ट रिमेंबर 194C। 194C किसके लिए था, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट थी, उसमें 1% था या फिर 2% है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी। नाउ व्हाट दे डिड, 192, I told you na, there were lots of sections was there, 192, 194, 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, K, etc etc। now only 3 sections are there, उसमें फर्दर सब सेक्शंस हैं, फर्दर सीरियल नंबर्स हैं, बट सेक्शंस आर ओनली 392, 393, 394। तो इसको इन्होंने 194C को क्या चेंज कर दिया है, सब सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 सीरियल नंबर 6 क्लोज आई। तो दीज चेंजेस आर देयर। तो उसको मैं अभी आपको कंपैरिजन भी करता हूं, जो मेजर सेक्शंस है, जो मेजर टीडीएस सेक्शन मैपिंग है। तो जो सैलरी का था, टीडीएस अंडर द हेड सैलरी, ओल्ड सेक्शन वाज 192। नाउ व्हाट्स द न्यू सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025, इट्स सेक्शन 392। Then interest on securities. Earlier it was 193. Now it's 393 or subsection 1 serial number 5 आई। ये शायद 194A हो सकता है, इसको एक बार देख लेना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ठीक है, वो इंटरेस्ट अदर्स के ऊपर है, वो एक बार ये चेक कर लेना आप, माइट बी सम मिस्टेक्स आर देयर। देन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, उसके लिए 194C उसका चेंज कर दिया। कमीशन 194H उसका भी, आई टोल्ड यू ना, सिर्फ 392, 393, 394, उसके बाद उसका सब हेडिंग, उसका सीरियल नंबर, उसका क्लोज, वो चेंज है। तो ये रेंट में, प्रोफेशनल फीस में, इंटरेस्ट में, डिविडेंड में, ई कॉमर्स में, ये चेंजेस हैं आपके जो सेक्शंस हैं। दैट्स द न्यू सेक्शन, न्यू रेफरेंस आपके हैं। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है 392, 393, 394। उसके बाद माइट बी आफ्टर सम टाइम, अगर गवर्नमेंट अगेन उसको रिवाइज नहीं करती, तो यू विल रिमेंबर ऑल दिस सेक्शन। अब इसके रेट्स देखते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द कोड, वो जो आपकी हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि आपके पेमेंट, आपके रिटर्न्स, उसके बाद आपके उसमें इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जो सेक्शन था आपका 192, नाउ आई टोल्ड यू इट्स 392। इसमें कोड कौन सा है, पेमेंट कोड 1001। और इस पे जो रेट्स हैं सैलरी का, तो वी नो दैट एज पर स्लैब्स हैं, जो आपकी सैलरी और जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी एग्जम्पशंस है, इतने अमाउंट्स के ऊपर आपका टीडीएस विल डिडक्ट, इट्स द सेम थिंग। देन जो सैलरी आइदर से सेंट्रल गवर्नमेंट है, आइदर इट से प्राइवेट एम्प्लॉयज है, अदर एम्प्लॉयज है, देन उसका सेम है आपका बेसिक एग्जम्पशन। देन जो नेक्स्ट है, दिस इज फॉर द पीएफ विड्रॉल। अगर आपने एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो आपका 192A था, उसके ऊपर क्या रेट है, 10%, और उसकी लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज। और इसका न्यू सेक्शन क्या हुआ है, सेक्शन 392 सबसेक्शन 7। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो भी मैंने आपको बताया 193 में, उसके ऊपर जो अर्लियर सेक्शन था 193, नाउ इट्स द सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 5 क्लोज आई, और इसका पेमेंट कोड 1019, और इसके ऊपर क्या है, 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपीज। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट
जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हो फॉर सीनियर सिटीजन्स, 194 ए था जो पहले, नाउ इट्स सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 5 क्लोज 2I। तो उसमें आपका क्या है, 10%, और इसकी जो लिमिट्स है 1 लाख रुपीज। ये रेड क्यों है अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देन इंटरेस्ट जो अदर देन सीनियर सिटीजन का है उसका आपका 10% है, थ्रेशोल्ड लिमिट सेम 50,000। देन जो नॉन बैंक से अगर आप प्राइवेट पार्टीज वगैरह को पेमेंट कर रहे हो उस केस में भी आपका 10% है एंड थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपीज। नाउ जो इसका कोड नंबर है दैट्स डिफरेंट। जो सीनियर सिटीजन के लिए 1020, बैंक पोस्ट ऑफिस के लिए 1021, अदर जो नॉन बैंक पेमेंट्स है उसके लिए 1022। देन जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं आपकी प्रेफरेंस शेयर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, वो आपका सेक्शन 194 10%, और लिमिट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की, 5,000 के वो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। उसमें जो न्यू सेक्शन है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 7, इसी एंड अकॉर्डिंगली डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड। दिस इज रिगार्डिंग द जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के रिलेटेड आपके हैं। नाउ विल सी सम मोर इंपॉर्टेंट विच इज रेंट, प्रॉपर्टी एंड कमीशन। रेंट, प्रॉपर्टी एंड कमीशन, जो हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, या सबसे पहले जो है आपका इंश्योरेंस कमीशन है। इंश्योरेंस कमीशन में पहले आपका कौन सा सेक्शन था, 194D, नाउ इट्स सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 1 एंड देन 1I, और इसका कोड कितना है 1005। इस केस में 5% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000। देन कमीशन ब्रोकरेज, अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पे कर रहे हो नॉन इंश्योरेंस की, वो तो था इंश्योरेंस कमीशन, यहाँ पे नॉन इंश्योरेंस की आप किसी को वैसी कमीशन पे कर रहे हो, उस केस में आपका सेम है 5% है और थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 रुपीज। देन रेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर, रेंट में भी आपको पता है पहले वही आपका 194I एंड उसमें ए था, 194I बी था, वो सेम ही है उसमें, और थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है। कई लोग कह रहे हैं 5 लाख हो गई या 6 लाख हो गई, 50,000 पर मंथ हो गई, वो अभी नहीं अप्रूव है। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट हैव टू बी केयरफुली। इसका आपका कोड है 1008 और लैंड एंड बिल्डिंग का है आपका 1009। वही आपका वहां पे 2% और यहाँ पे 10% जो आपका रेंट लैंड एंड बिल्डिंग का है। देन आपका जो था रेंट बाय इंडिविजुअल HUF जो नॉन ऑडिट मोर देन 50,000 पर मंथ है 194IB में, उसमें 2% है 50,000 में। देन ट्रांसफर ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी 194IA में, उसमें आपका 1% है, 50 लाख की लिमिट्स है कि अगर आप सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह करते हो उस केस में आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है वो सेम है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है। देन 194IC जो पहले था वो था आपका मॉनेटरी कंसिडरेशन इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसका न्यू सेक्शन क्या है, वो आपके स्टार्टिंग में है 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 3 एंड देन क्लोज II। तो इस केस में 10% कोई आपकी लिमिट नहीं है। फिर एक जो नोट है इंपॉर्टेंट आपका 194I में आपका जो कोड है 1000 जिसके ऊपर स्टार लगे हुए हैं 1007 1009 जो अप्लाइज टू एनी पर्सन लाइबल फॉर ऑडिट। फिर जो 194I 1007 अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट पेइंग रेंट, उस केस में 50,000 आर मोर पर मंथ। ये जो आपके अलग से उसके सेपरेट प्रोविजंस है। दिस इज रिगार्डिंग द रेंट, प्रॉपर्टी एंड कमीशन। देन नेक्स्ट 393 जो सबसेक्शन 1 है कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल फीस एंड द ई कॉमर्स सर्विसेज। उस केस में क्या है, अगर नेचर ऑफ पेमेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जो आप कर रहे हो, जो पीछे आपका 194C था इंडिविजुअल HUF अदर्स जो 1% 2% मैंने आपको बताया उस केसेस में था, उस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 30,000 एंड द 1 लाख पर एम कि वन टाइम पेमेंट 30,000 है या 1 लाख है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट यस कोड 1023 या 1024, और इस केस में आपका वही जो मैंने पीछे आपको सेक्शन बताया सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 देन क्लोज I। देन आपका जो 194M बेसिकली दैट्स पेमेंट बाय इंडिविजुअल HUF नॉन ऑडिट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, उस केस में आपका 2000 है एंड
50 लाख पर एनम की जो पेमेंट्स है 1025 में उसका चेंज हो गया। देखो रेट्स में कोई चेंज नहीं है, मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम सेम है आपके रेट्स जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन से। बट यू हैव टू ओनली रिमेंबर द कोड एंड द सेक्शन, सेक्शन सब सेक्शन एंड देन देयर जो सीरियल नंबर प्लस क्लोज है। देन प्रोफेशनल जो हमारी टेक्निकल रॉयल्टी फीस होगी, देन जो हमारे लिए है प्रोफेशनल सर्विस फीस या फिर डायरेक्टर फीस, उस केस में 194 जे था, नाउ इट्स सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल सीरियल नंबर 6 एंड उसमें आपके जो क्लोज है 3I, उस केस में आपका सेम 10,000 और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इट्स से 30%। तो जो सेम आपके फिर 194Q, 194R, 194O जो ई पेमेंट सर्विस के लिए है, उसके ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो इस केसेस में कोई चेंजेस नहीं है। देन नाउ जो आपका कैश विड्रॉ करते हैं या फिर विनिंग वगैरह के लिए है, हॉर्स रेस विनिंग या ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह के लिए, पहले भी 30% था, अब भी 30% है। यस, जो सेक्शन थे 194B, 194BA, BB वो सब चेंज हो गए। या लॉटरी कमीशन का 194G था। कैश विड्रॉ जो बैंक्स वगैरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैंक्स वाले हमेशा आपको पागल बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने दो पहले वीडियोस भी बनाए हैं कि वेदर इट्स लिमिट 20 लाख है या 1 करोड़ है, वो आप चेक कर लेना। बैंक्स वगैरह को जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स वगैरह को आपको डिडक्ट करना पड़ता है, इट्स द सेम थिंग, ओनली उसकी जो सेक्शंस है अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट दैट हैज बीन चेंज, उसमें आपके ये कोड्स भी न्यू चेंज है। एंड जो न्यू सेक्शंस आया आपका, जो अभी इस साल से एप्लीकेबल भी है, नेक्स्ट ईयर भी है, दैट्स द पेमेंट टू पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स को कोई सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन न्यू सेक्शन वाज देयर 194T। उस केस में कितनी लिमिट थी थ्रेशोल्ड? 20,000 एंड 10% आपका टीडीएस यू हैव टू डिडक्ट पार्टनरशिप फर्म को। उसमें कौन सा न्यू क्लोज जो न्यू सेक्शन है? सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7। तो ये मैंने आपको बताया, दिस वाज द न्यू सेक्शन। आपको जो पार्टनर्स रेमुनेशन है, कोई कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट है, वो आप पेमेंट कर रहे हो, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप सीए संसार यूट्यूब चैनल पे चेक कर लेना। एंड यस, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो आप उसको कमेंट्स दो वीडियोस के ऊपर, सब्सक्राइब करो, आस्क योर फ्रेंड्स। तो दिस इज ओनली what you can say that consideration for you, for us from your side। टीडीएस भी डिडक्ट कर लेना, कोई बात नहीं, 10 अगर आप लाइक करना तो एक उसमें कम कर देना, नो इश्यू एट ऑल। ओके, देन नेक्स्ट जो एक मिस्टेक्स है, आई टोल्ड यू ना कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें, जो कॉमनली मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले जो आपका है रेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट, जो 194I में, जो मैंने आपको बताया, मैनी पीपल आर सेइंग नाउ इट्स 6 लाख। नो, इट्स सेम थिंग, 2,40,000 पर एनम और 20,000 पर मंथ। बिकॉज जो चेंज आया है वो अब भी इनेक्ट नहीं हुए हैं, वो आपके 6 लाख रुपीज 50,000 वाला अभी चेंज नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये आपका सेम ही चलेगा और इसका कोड है 1008 या 1009। देन जो प्रोफेशनल फीस थी पहले 194J, प्रोफेशनल फीस जो 194J थी, अभी लोग कह रहे हैं कि 50,000 हो गया। नो, इट्स द सेम थिंग, आपका वही 30,000 ही है। आपका जो 50,000 है वो अभी नहीं इनेक्टेड हुआ, और उसका भी रेट आपका वही 10% है जो आपका 194J में, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इसका भी कोड 120, 1026, 1027 या 1028। देन अनदर वन, जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रस्ट इनकम है 194LBC, उस केस में भी अभी कह रहे हैं कि वो 10% हो गया। नहीं, वो अभी नहीं हुआ, अभी करेक्ट रेट वही आपका 25% है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, 30% अदर के लिए। तो ये जो कुछ इश्यूज हैं, अगेन आई एम सेइंग, माइट बी, आई हैव डन माय बेस्ट, हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है आपको एक एग्जैक्ट फिगर और बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर दी जाए। तो ये जो है अगेन आप क्रॉस चेक कर लेना, वैसे पूरा 99% ठीक है, फिर भी 1% आप चेक कर लेना। देन नेक्स्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अगर आपको इसकी शीट चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू द शीट। इसको अगेन आपका लाइक 192 में 392 आपका स्लैब रेट्स हो गया, पीएफ विड्रॉल 192A, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193,
डिविडेंड 194, 194A, 194D, 194H, 194IA। ये देखो, ये सारे रेंट और परसेंट भाई 2,40,000 है, 5-6 लाख नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, हर जगह वो आपका चेंज आएगा। उसी अकॉर्डिंगली आप अगर 194J देखोगे, 194J वही आपका 30,000 है, वो आपका चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हो सकता है ये प्रोफेशनल फीस, ये 30,000 10%, टेक्निकल फीस में 2% है आपका, वो वही सेम टू सेम है। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, इस सेम कंपैरिजन रेट ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम है जो पुराने रेट से। थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है, सिर्फ एक दो में कुछ चेंजेस है, दैट यू हैव टू सी। ठीक है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए 194A, देन क्रिप्टो करेंसी के लिए जो पहले थे, दिस वाज ओल्ड सेक्शन, नाउ these are new sections, these are rates and these are the threshold limit। मैं बार बार बोलूंगा तो वो टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें और लेंथी होता जाएगा कि सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 सीरियल नंबर 8 क्लोज वी, वो बात वही रहेगी। आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको फिर दोबारा एक बार ये बता देता हूँ। सैलरी का ओल्ड सेक्शन है, न्यू रेफरेंस, न्यू रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। पीएफ विड्रॉल का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो बैंक पीओ के ऊपर था, इसके अंदर आपका जो वो कोड है, इट्स नॉट मेंशन, बट वो अर्लियर आई हैव मेंशन, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अगेन कंपैरिजन के लिए दिए, तो कोड भी यू हैव टू रिमेंबर। देन इंश्योरेंस कमीशन, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट प्लांट एंड मशीनरी, रेंट लैंड एंड बिल्डिंग, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या रेट है, देन रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, देन प्रॉपर्टी परचेज, उसके जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पेमेंट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, ये टेक्निकल फीस, प्रोफेशनल फीस, ये एवरीथिंग आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्रिप्टो वीडीए, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस स्पिनिंग, लॉटरी कमीशन, कैश विड्रॉल, एनएसजी विड्रॉल, पार्टनर पेमेंट्स। अब देखो कितने सेक्शन थे, रिमेंबर दैट थिंग। 192, 193, 194A, बी, उसका DHI, फिर BIA, C, कितने सारे JDAQROSBABT, कितना सारा कंफ्यूजन था, उसको सारा रिमूव कर दिया। ना ओनली 392, 393, TDS के लिए आपका 394। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यू TDS रेट्स, जो आपके न्यू TDS रेट्स हैं वो, दिस इज द कंपैरिजन। और आई विल आस्क जो TSCA संसार टीम है कि आपको ये आप अपना चैनल बता देना टेलीग्राम पे, वहां पे अपलोड कर देंगे पूरी शीट, या फिर जो मेरा लिंक्डइन का मैंने अभी प्रोफाइल में बताया था, आप उस पर भी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस पर भी मैं आपको दिखा दूं कि जो शीट है कंपैरिजन की, वहां पे अपलोड करेंगे, यू पीपल कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो वंस अगेन माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड यस अभी इसके बाद विल ट्राई, जो मैंने आपको बोला है जो न्यू सेक्शन वर्स ओल्ड सेक्शन वर्सेस न्यू सेक्शन, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एंड देन ऑन रेगुलर बेसिस विल ट्राई कि आपके लिए वेबिनार्स एंड द न्यू वीडियोस ऑन द बैंक ब्रांच ऑडिट। सो यस स्टेला जी, कुछ और पूछना है तो बताओ। I'm very full grateful to you, sir. Like you explained very well and very clear to us, so that we can understand very well the topic TDS change is important. And hope those who are watching they understood very well. We will mention the links of our Telegram, everything in the in description, so definitely you can guys reach that. Thank you so much again, sir. Thank you very much once again to the team CS Sansar for giving me opportunity on your platform. Bye bye, take care.